ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮೇಲು ಕೀಳು ಹಲವು ದೈವಗಳ ಒಂದು ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ದೇಹಗಳೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಎಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ, ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವೆಂದು 770 ಜನ ಅಮರಗಣಗಳು, ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ 96,000 ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಚನಗಳು ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತವೆಂದರೆ, ಈ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಹವೇ ಇದೇ ದೇವಾಲಯ, ಇದೇ ದೇಗುಲ, ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವ ಈ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ. ಅದು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು, ಉತ್ಪಾದಕರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಚನ, ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹುವಾದಾಗಲೇ ಉದಯ, ಅಯ್ಯ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮರಹವಾದಾಗಲೇ ಅಸ್ತಮಾನ, ಅಯ್ಯ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ ಜೀವನ, ಅಯ್ಯ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ ಪ್ರಾಣ ಕಾಣ ತಂದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣದುಂಡಿಗೆ ಒತ್ತಯ್ಯ, ವದನದಲ್ಲಿ ಷಡಕ್ಷರಿ ಬರೆವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನೋಡಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ವಾಹನ ಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕ. ನಾನು 1973ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ. ಇವಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಶರಣರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿಯೇ ಇವೆ. ಈ ವಚನ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಭಾರತ, ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನ, ನನ್ನ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿತುಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆಶೆ. महात्मा बसवಣ್ಣನವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, इस वचन में क्या बोलते बोले तो, ಅಯ್ಯ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವಾದಾಗಲೇ ಉದಯ. तो हर इंसान दो है, हम है, हमारा अंदर सृष्टि का मालिक है, ये गट्टितना. इसलिए मैं बोलता हूँ, वो जो मानव निर्मित जो मूर्तियाँ हैं, जो फोटोआँ हैं, लोहे के, चांदी के, सोने के, एल्युमिनियम के, कौन सा भी मूर्ति में भगवान देखने के वास्ते हमारा बसवा कल्याण के शरणों ने नहीं बोला है. इसीलिए तो छाती पर इष्टलिंग बांधकर शरण सती लिंगपति, मतलब हमारा अंदर का मालिक हमारा मर्द के जैसा है, हमारा माँ की जैसा है, हमारा बाप की जैसा है, हमारा बंधु बड़गा के जैसा है. हमारा अंदर के जो सृष्टि का मालिक, दुनिया ही का मालिक ही हमारा साथ में है. इतना हिम्मत से दुनिया में अगर कोई तो दिखाया है तो बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के शरणों ने, महात्मा बसवण्णा जी ने. मैं आपको कब याद करता हूँ? जब मुझे सूरज निकले जैसा होता है. ಅಯ್ಯ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮರಹವಾದಾಗಲೇ ಅಸ್ತಮಾನ. मैं मालिक, मैं आपको मैं भूल कर तेरा हवा, तेरा पानी, तेरा ज़मीन पे पिका हुआ अनाज, ये हर चीज़ मैं तुम्हारे छे, तुम्हें छ में बनाया, फिर भी मैं तुम्हें याद नहीं किया. इस शरीर को लेकर चलने वाला तुम्हें छे. अगर मैं तुम्हें याद नहीं किया तो उस दिन मेरा सूरज डूब गया, मुझे अंधेरा हो गया जैसा होता है. ऐसा बोलते हैं अनुभव मंडप के महात्मा बसवण्णा जी. ये वचन उनके लिए नहीं, ये उन्होंने देश की विदेश की दुनिया के लोग जिसका नमक खाए थे ना, उनका गुनगाना गाओ, ऐसा बोलने के वास्ते ये वचन लिखा है. अय्या ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ जीवन, मैं कभी तुम्हें याद करता हूँ, तुम्हारे साथ मिलकर ध्यान करता हूँ, स्वच्छ मन से ध्यान करता हूँ. मैं चोरी नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पाप का काम नहीं करूँगा. ऐसे पूरे जितने भी इंसान हैं धरती पे वो सब भगवान की स्वरूप ही है समझकर मैं अपना मेहनत कर मैं तुम्हारा प्रसाद लेता हूँ, ऐसा बोलते हैं. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ जीवन, तुम्हें याद कर लिया तो मैं जीवंत हूँ, जिंदा हूँ. अगर तुम्हें भूल गया जब मैं मर गया जैसा होता है, ऐसा बोलते हैं. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ जीवन, अय्या ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ प्राण काण तंदे. अगर तुम्हारे साथ मैं याद करते रहूँगा, कभी कभी सवेरे शाम 24 घंटे में कम से कम एक बार तो अगर मैं तुम्हारा दर्शन लूँगा तो मैं मेरा जान में जान आया जैसा होता है. ये क्या झूठ है क्या? इतने देश के अंदर स्वामी पुजारी लोग महान प्रवचन बोलते हैं, हाँ, ये वचन मालूम नहीं होता क्या? 23 भाषा में आए, 23 भाषा में. और बसवण्णा को मंदिर बनाकर बैल बनाकर बिठाया ना. कितने देशद्रोही कौन है? देश का भक्त कौन है? देशद्रोही कौन है? मैं इस वीडियो को एक विनंती करता हूँ, हमारा भारत देश के अंदर रहने वाले पूरे मूल निवासियों को मैं विनंती करता हूँ, ऐसे विचार पढ़ो, समझो और फ्रीडम जिंदगी करो. किसी के सामने जो गुलाम होने का ज़रूरत नहीं है. भगवान के बारे में इष्टलिंग बांध लो, वचन पढ़ो
और अपने घर में सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहने का कोशिश करो। तुम्हारा घर ही एक अनुभव मंडप होता है, तुम्हारा घर ही एक वाराणसी होता है। हमें वाराणसी गिराणसी उधर जाने का ज़रूरत नहीं है। वाराणसी हमारा घर में हमारा माँ बाप सब भाई बहन हमारा फैमिली से हमारे भगवान है समझ के चलो। अगर देखना कुछ जाना है तो जाओ न, मत नहीं, लेकिन प्रकृति देखने को जाओ। भगवान बाहर ढूंढना एक बहुत बड़ा अज्ञानता है, एक गुलामगिरी है। मैं इस शरणों का वचन के आधार के ऊपर बोल रहा हूँ। ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಹವೇ ಪ್ರಾಣ ಕಾಣ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ದುಂಡಿಗೆ ಒತ್ತಯ್ಯ। किसको बोल रहा है स्वामी? हम कहाँ तो मानव निर्मित इसके सामने जाकर झुककर भीख मांगने का ज़रूरत नहीं है। आंखें मूछो, बाहर का आंखें मूछो, अंदर का आंखें खोलो, स्वच्छ दिल से सवेरे के टाइम पे 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कितना याद करना है। स्वच्छ दिल से धन्यवाद बोलना है। किसी चीज़ को भीख नहीं मांगना है। भगवान हमें वो दे दो, भगवान हमें ये दे दो, हमारे बच्चों को नौकरी लगने दो, मेरा शादी जल्दी हो, वो कुछ नहीं। हम अच्छा रहे तो हम जो प्रयत्न करेंगे वो होता है। तुम किसी से भीख मांगने से, ये मूढ़ आचरण के पीछे भागने से कुछ भी एक पैसा भी आप लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। मेरा भारतवासियों, तुम सब गुलाम होते हैं। इतना ही मैं विनंती करता हूँ। स्वामी, ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ चरण ದುಂಡಿಗೆ ಒತ್ತಯ್ಯ। मतलब चरण बोले तो पैर। भगवान हमारे अंदर है बोलने के मतलब, बोलने के बाद में आंखें है, सर है, कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है। हमारा जैसे एक शरीर अंदर है समझकर जो जीता है ना, वही एक असली भक्त होते हैं। असली भगवान का भक्त यहाँ पर है, यही है, यही मंदिर है, यही मंदिर है, यही देवस्थान है। अगर हमसे कुछ गलती हुआ, जैसे कि रोज़ कचरा झाड़ू मारते घर में, वो कचरा ढकलते बाहर, वैसा हमारा अंदर का कचरा अगर कुछ पड़ा, बुरे लोगों के पास बैठने वजह से, फिरने की वजह से, वो फेंकना चाहिए। फिर स्वच्छ दिल होता है और हेल्थ अच्छा रहता है और टेंशन नहीं होता है। बीपी, शुगर और हार्ट अटैक कुछ भी नहीं होता है, मैं गारंटी देता हूँ। इसलिए हर गली में अनुभव मंडप की ज़रूरत है। हर गली में अनुभव मंडप की ज़रूरत है। इसके ऊपर भरोसा रखकर कौन करेगा ना, 1 घंटा आधा घंटा गारंटी है बोलता हूँ मैं, हमारा भारत देश विश्व गुरु बन सकता है। वो भी महात्मा बसवण्णा का अनुभव मंडप का परिपूर्ण तत्व से ही हो सकता है। ಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ದುಂಡಿಗೆ ಒತ್ತಯ್ಯ, ವದನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಷಡಕ್ಷರಿ ಬರೆವಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। तो क्या बोलते हैं भगवान बसवण्णा जी लास्ट में? ये शरीर एक बहुत बड़ा मंदिर है और पिशाने पे तुम्हारा नाम का सिक्का मारो, नाम का शिल मारो। जब मैं तुम्हारा साथ में जिंदगी भर तुम्हारा साथ में जब तक जीऊँगा, तब तक मैं तुम्हारा साथ में रहूँगा। ऐसा बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी इस वचन के अंदर। इसलिए मैं मेरे भारतवासियों, आप लोगों से मैं विनंती करता हूँ, ये अंधा श्रद्धा भक्ति बहुत डेंजर है। मानसिक बीमारी हो सकता है तुम्हें और घर में झगड़ा हो सकता है। ये इसका पीछे जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक किसी का भी भला नहीं हो सकता है। ये मेरा दिल से विनंती कर रहा हूँ। मुझे जो सच्चा मालूम हो गए, मेरा भारतवासियों को बोलना एक मेरा फर्ज होता है। इसलिए महात्मा बसवण्णा जी बोले हैं, हाथी पे बैठ के चले गए, घोड़े पे गए और सच को समझे बगैर ऐसा ही फुकाट का खाना खा के, हवा खा के, सबका प्रकृति का मालिक का सब लेकर एक दिन ऐसे चले गए, तो वैसे लोगों को गंदे नाले के कीड़े हो गए, बोलते गंदे नाले के कीड़े। बस मैं इतना एक
सबका भलाई के वास्ते, सबका कल्याण के वास्ते ये वचन बसवन्नाथ जी का वचन मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए आप सबको अच्छा लगा। भारत देश के अंदर 140-45 करोड़ है ना, वो पूरे लोगों का घरों को अगर पहुंचने का काम कौन कौन करेगा ना, मैं गारंटी देता हूं उनका ज़िंदगी बदलकर एक महान ज़िंदगी हो सकता है और एक न एक दिन होता है। इतना बोलते हैं मैं पूरे मेरे भारतवासियों को मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।